Yes, students. Torque हो चुका है, work done in order to rotate an electric dipole in an external uniform electric field. हाँ students, ये बाकी है, ये करना बाकी है. So students, okay, I'll go ahead with this part. Okay, students, I told you about charges. I told you about distribution of charge. Fine, Chirag. I told you about distribution of charge. Okay, Shavani. Okay, I told you about distribution of charge. That is charge per unit length, lambda, charge per unit area, charge per unit volume. I made it very clear. Okay. Okay. One thing I want to ask: did I do concept of electric flux and Gauss's theorem and applications of Gauss's theorem, students? Students, flux हो चुका है. Okay, because of Gauss's theorem is remaining. Flux हो चुका है, electric flux हो चुका है. Fine. और इसके applications बाकी है, Gauss's theorem के applications बाकी है. Okay. Okay, fine. Fine, students. Okay, students. Now we move further at students. In the last lecture, I told you about electric dipole moment and I told you about torque acting on electric dipole. Today, we'll be doing work done in order to rotate an electric dipole in an external uniform electric field. Okay. I told you about, I'm just giving you the basic formula, students. Okay. So that you'll come to know about the TA ho chuka hai. Please pay attention. Okay. I'm putting it over here. Q is equal to plus or minus NE that I've made it done with y'all. Okay, then I must have told you about lambda is charge per unit length, dP by dl. Okay, sigma is charge per unit area. Okay, and rho we consider as charge per unit volume. Okay, this is linear charge density, surface charge density, and volume charge density. Okay, and the corresponding units. I've made it very clear with you. Then I had, when I was speaking about with respect to electric charge, we consider, I told you about formula for Coulomb's force. And Coulomb's force we consider as C, we write down in terms of capital Q, small q upon r square, where capital Q students have taken it as a source, small q जहाँ पे effect हो रहा है, and r is the distance. ये जो C मैंने लिखा है वो है Coulomb's constant 1/4 pi epsilon 0 है. Actually क्या आना चाहिए, लेकिन ये हम consider करते हैं vacuum में. तो इसका वैल्यू था 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स. एग्रीड. अगर यहाँ पे मैं एप्सिलॉन 0 लेता हूँ तो 8.85 into 10⁻12 हो जाएगा. इसी यूनिट का इनवर्स होगा, मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर. Please, it seems that you're like interacting after a week, so that's why I need to put forward these things. And some students who are lost will be in a part of it in how to. और तो मैं जो learn करना होता है ना chapter students, so learn the way it has been told to you. Don't learn it anyhow in that case. फिर जैसे हम लोग ने force के बारे में मैंने complete किया था, then I told you about the concept of a dielectric medium and your concept of permittivity. So I have made it very clear. अगर मैं epsilon 0 k for a medium लिखता हूँ, so that is simply epsilon for a medium also. ये ध्यान में रखना students. Okay, so K for a medium is simply epsilon for a medium to epsilon 0. We also consider as relative permittivity we consider. Okay, ये हमेशा ध्यान में रखना. K अगर मैं लेता हूँ air और vacuum के लिए, तो air और vacuum के लिए the value of K will be equal to 1 students. अगर मैं K for any other medium लेता हूँ, okay, other than air or vacuum, other than air
or vacuum, the value will be greater than 1. K for metal, students, I'm taking it as infinite. K for water, I'll take it as nearly equal to 81. Some books gives you 80, some books give you 81 in that case. Okay. So these are the formulas which you explained us, right, from the start. Yes. That's what I'm trying to put forward. So that you come to know about it. What is the flow? What is the flow? Yes, Okay. sir. Then इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने वेक्टर फॉर्म में भी दिया था. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब आएगा, यहाँ पे एफ आर कैप आएगा. फिर जैसे ये कंप्लीट हुआ, देन आई वेंट ऑन टू द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. इट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज वी कंसीडर. ये एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, तब जाके इसका आया यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स. और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज नेगेटिव dV by dr. अगर तुम्हें ये मालूम हो तो इसको मैं एक दफे वापस बता देता हूँ. मैंने ऐसा बताया था कि दो प्लेट्स है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इस तरफ जाएगी. अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इलेक्ट्रॉन विल गो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट. अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो पॉजिटिव विल गो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट. पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को मूव करता हूँ तो आई एम डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. So we found out the formula for electric field intensity with respect to your potential gradient negative dV by dr. यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना कि नेगेटिव चार्ज होगा तो वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा. डू कीप इन माइंड. तभी जाके आई यूज्ड टू टेल द यूनिट एज वोल्ट मीटर इनवर्स आल्सो. वन यूनिट कीप इन माइंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर. Then since I know that E is equal to F by Q, since we have got it at E is equal to F by Q, students, okay, F by Q, force का formula मेरे हाथ में है, तो what exactly the formula for E will be? For E and consider will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught K for a medium. Agreed? तो ये F यानी ये आया. कैपिटल Q स्मॉल Q R square और नीचे क्या है? स्मॉल Q है. The effect gets cancelled. Students, the effect gets cancelled. So it's capital Q upon R square. And this answer will be Newton Coulomb inverse. This is very important, which I made it very clear. Please, students. Okay, that's the concept of electric field intensity I told you. And from these two relations, I made you all very clear that force is also inversely proportional to the square of the distance. Electric field intensity is also inversely proportional to the square of the distance. And a graphical way of representation बताया था मैंने. F or E with respect to position. The graph was what? The graph was hyperbola, we consider. As distance increases, the force or electric field will decrease. Is this clear, students? क्या ये clear है सबको? All of you all? Yes, sir. Okay, fine. ये तुम्हारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था. जैसे मैंने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद मैं तुरंत आई वेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स. यानी आई वेंट फॉर सिंपली आई गो फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये क्या कंसेप्ट था स्टूडेंट्स? ये क्या कंसेप्ट था? अगर सपोज मैंने एक चार्ज दिया है स्मॉल क्यू, जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है. प्लीज एवरीबॉडी से गेट, ये पॉजिटिव चार्ज है. और यहाँ पे नेबरिंग में मैंने चार्जेस लिया है Q1, Q2, Q3. नेचर शायद सबका सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है. इसका नीचे में पॉजिटिव लूं, इसका मैं पॉजिटिव लूं, लेकिन इसका मैं नेगेटिव ले लेता हूँ. तो होगा क्या? ये जो चार्ज है इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इसके भी इन्फ्लुएंस में आएगा, इसके भी इन्फ्लुएंस में आएगा. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? आई गेटिंग इट? So to make it very clear, I told you about, to understand this, I first went for electric field lines का concept. ये भी मैंने बताया था. Electric field lines always start from positive and it terminates towards the negative we consider. No field lines intersect each other. Field emerge perpendicularly, terminate also perpendicularly. For a positive charge, the field is outwards. For negative charge, the field is inwards. From a unit positive charge, there is only one and only one electric field line originating from that particular charge.
अगर मैंने ध्यान से देखना, अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया है, सपोज मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो I can assume that this positive charge is considered to be at the center of an imaginary spherical conductor. इसको मैं assume कर सकता हूँ. Assumption है कि ये center of the spherical conductor है. अगर suppose मैंने यहाँ का एक area part ले लिया, ध्यान से देखो students, तो मैं assume करूंगा कि ये positive charge है और ये conductor है, तो field line यहाँ से बाहर आएगी. अगर सपोज मैंने ये वाला एरिया पार्ट ले लिया है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि फील्ड लाइन फ्रॉम दैट, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. फिर अगर मैं ये एरिया लेता हूँ तो इसको लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि सर आपने बोला था फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन फील्ड लाइन कैन पास थ्रू. ये मैंने बहुत क्लियर किया था. एंड दिस वाज द बिल्ट अप ऑफ योर फ्लक्स. दिस वाज अ कांसेप्ट ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Charges always reside on the surface also, I told you. I made it very clear that if I take a glass sphere, if I take an ebonite sphere, the glass sphere when rubbed with silk had a charge positive. Ebonite when rubbed with fur, the charge was induced negative. Charge अगर discrete manner में होगा तो Q is equal to plus or minus any होगा. Charge अगर continuous manner में होगा तो simply integration of dq will be capital Q. ये भी बता दिया था, very clear. Is this clear, students? Okay. Now please pay attention. Now when I speak about with respect to your superposition, okay, please, any kind of confusion, any kind of query, do unmute yourself and ask. Maybe I must be focusing on the board, may not be able to see the device, and in that maybe the messages might be scrolling up. So it's better that you unmute yourself and speak it out. That is still better. Okay, अभी देखो प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मैंने क्या बोला था, फोर्स के हिसाब से. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा स्टूडेंट्स, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एक सिंपल है, सपोज अगर मैं ये पेन को मैं अगर इस तरफ मूव कर रहा हूँ, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा. वेलोसिटी ऑफ वन टाइम एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा. मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा. मास इनटू लीनियर वेलोसिटी मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा. तो सेम थिंग यहाँ पे एफ एंड ई आर इन द सेम डायरेक्शन वी कंसीडर. तो जो फॉर्मूला मैं एफ का लूंगा ना, ध्यान से सुनना, एफ के लिए नीचे आर स्क्वायर आएगा और इफेक्ट भी आ रहा है, वही 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 अप्रोच होना चाहिए. लेकिन ई का सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. ई के अंदर सोर्स आएगा और नीचे आर स्क्वायर आएगा. ये जो इफेक्ट वाला चार्ज है वो चला जाएगा. That will not occur in the mathematical relation. That's the only difference. Second point to take care, whenever you're solving problems based on force and electric field, these are vectors. Students, do not take the nature of the charges. Positive, negative, इनका nature लेने की जरूरत नहीं है, because ये vector sum है. How do you go about, which I told you very clearly, ये इसके फील्ड के अंदर आ गया तो होगा क्या, सर ये सोर्स है, ये इफेक्ट है, ये बंदा इसको रिपेल करेगा, तो इसको मैं बोलता हूँ लेट फोर्स एक्सर्टेड बाय 1, ओके, ऑन दिस. फिर ये भी इसके रीजन में आ रहा है, तो ये भी इसको एक्सर्ट करेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन दिस. एग्रीड. तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जा सकता है सर? इन दोनों का रिजल्टेंट आई कैन गो फॉर एंगल बिटवीन देम एंड द रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन. एग्रीड. इज दिस क्लियर? ब्लोइंग इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया. लेकिन ये भी तो नेगेटिव चार्ज है सर, इसको भी तो आपने सोर्स लिया है, क्यों नहीं? तो इसके लिए क्या होगा सर? इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये भी इसके रीजन में आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा. ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे अगर देखो तो ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट? यस. एक तुम्हारा ये होगा फोर्स जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तुम निकाल सकते हो. दैट इज बाय पैरेललोग्राम वी कंसीडर टेकिंग एन एंगल थीटा. ये तुम्हारा फोर्स इसकी वजह से. तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा सर? शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल. हम ब्लूइंग को शिफ्ट कर देते पैरेलल. So now see, what is my resultant? Tail, head. Resultant will be in this direction. So my resultant force acting onto it is what? Force exerted by 1 on small q plus force exerted by 2 on small q plus force exerted by 3 on small q. Is it a vector sum? Yes.
वही अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चाहिए तो वही आंसर होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, फॉर्मूला में फर्क होगा। यहाँ पे तुम अगर सपोज मैंने इसको 1 माइक्रोकूलम दिया है, ध्यान से सुनना, 1 माइक्रोकूलम दिया है और इसको मैंने दिया है 5 कूलम्स, 10 कूलम्स, 2 कूलम्स, तो जब फोर्स निकालोगे स्टूडेंट तो 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, लेकिन दैट 1 माइक्रोकूलम विल नॉट कम ओवर हियर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या होगा, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन 1 ऑन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 ऑन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 3 ऑन क्यू। क्या ये क्लियर है सबको? Sir, can you explain this again? Okay, okay, now everybody please try to solve this. Okay, I'm giving you an isosceles right-angle triangle. Can you see this diagram properly, students? Yes, sir. This is diagram visible. Okay, it's an isosceles right-angle triangle. This is side 5 centimeter, 5 centimeter. Okay, and there are two charges, 10 microcoulomb plus 10 microcoulomb. Sir, your voice is cutting, sir. Pardon, my voice is? Sir, it's lagging. Students, is my voice lacking? Please post it. No, Please sir. post. No, sir. Okay, so maybe the net at your end may not be proper, student. Okay. Page. What you said, the difference about charge. Difference about charge. मैंने difference about charge कहाँ पे बोला? मैंने ये बोला कि अगर ये दो पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, ये पॉजिटिव है तो भी रिपल्शन होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ओके, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फॉर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स and resultant electric field intensity on a given test charge, students, so during that time no need to take the nature of the two charges. This is very important, no need to go for nature of the two charges. Now let us take a simple example. यहाँ पे suppose अगर मैंने एक isosceles right angle triangle दे दिया है, okay, यहाँ पे मैंने एक point ले लिया, let me take this as point 1, point 2 and point 3, okay. And over here, there are 10 microcoulomb charges are placed at the two ends, 1 and 2. And there is a plus 2 microcoulomb charge is placed at point 2. Agreed? Mera question here, students, can you find out the result? Can you find out the resultant electric field intensity at midpoint on the hypotenuse? Resultant electric field intensity at point P, and this point P is the midpoint of the hypotenuse. Have you understood the question, students? क्या सबको question समझ में आया, students? Sir. Okay, now can you get an answer for this? We will try, sir. Yeah, huh? You want to try it out? You're doing it? Yes, Okay, sir. fine. Once again, I'll speak out the question, students. Listen carefully. Three charges, okay, of 10 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 10 microcoulomb are placed at three vertices of an isosceles triangle, 1, 2, and 3, respectively. The sides of the isosceles triangle is 5 centimeter each. Find out the resultant electric field intensity at a point P midway, okay, on the hypotenuse.
Is anybody? Resultant electric field intensity at midway, point P on the hypotenuse. Towards Kunj. Wait a minute, let me see. Absolutely, Chirag has got the correct answer. Chirag has got it. What is the direction, Chirag? इसका direction क्या होगा? Tej नहीं. Yeah. Tej, what is the answer for this? Answer is, students, 1.44. Okay, let me solve this. Let me solve this, please. Let me put this. Okay. Now listen carefully. Listen carefully. अभी ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्लीज टेंशन नहीं होगा. Okay. Friends, अभी दास सुनना. Everybody listen carefully, students. मैंने बोला था at a point P, यानी ये point P है जो midway है. If I happen to consider it's a midpoint and if I happen to drop a perpendicular, means again 90, and if it's a midpoint, means can I say a line joining the vertex of a right angle triangle to the midpoint of the hypotenuse always bisects, and it's means it's bisecting, so it's perpendicular to it. Again, this will be always perpendicular to it. We consider drop from the vertex to the midpoint will be always perpendicular to the hypotenuse. अभी ये तुम्हारा 45 होगा, ये भी तुम्हारा 45 है. Can you get this distance? Yes. Your distance. Let me take this particular point P as the point POV on the hypotenuse, and these two sides are equal. So what is sine of 45? Answer is gonna sine of 45 क्या होगा? Sir, opposite side upon hypotenuse. तो तुम्हारा opposite side क्या होगा? So sine of 45 into 5, तो ये 5 by root 2 हो जाएगा. लेकिन ये किसमें सेंटीमीटर में है, तो into 10⁻² मीटर. तो ये तुम्हारा डिस्टेंस r हो जाएगा. स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारे डिस्टेंस r. क्या ये क्लियर हुआ सबको? फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज, अगर नहीं तो Yes, प्लीज sir. लेट मी नो अबाउट इट. ओके, जैसे तुम्हें अभी r मिल गया, अभी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए. ध्यान से देखना. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, यानी अजम्पशन क्या है? सर, आपने तो 3 चार्ज दिए थे. आपने पूछा रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. स्टूडेंट्स, इसको और इसको कंपेयर करो. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज दिया था प्लस Q, यहाँ पे दिया नहीं है. तो तुम्हें क्या करना है, वहां पे अज्यूम करना है कि अज्यूम करो कि वहां पे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. कभी भी चार्ज नहीं देते स्टूडेंट्स, तो हमेशा कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड, यूनिटी. तो हमेशा अज्यूम ये करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. अभी देखो, अगर मैंने चार्ज यहाँ पे रखा है तो ये मेरा सोर्स बन जाएगा. सर, ये तो 10 कूलम है, 10 माइक्रोकूलम है. सर, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उसका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, उसका फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ये है इसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड. आई कंसीडर इन दिस केस. एग्रीड. अभी देखो, ये वाला चार्ज देखो 3 पे, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ देगा, तो फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा. यानी हो क्या रहा है, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे जा रही है, बात एक की वजह से फील्ड इस तरफ जा रही है. What about these two fields? Are the fields are in opposite direction? Absolutely correct. Are they equal in magnitude? तो तुम बोलोगे सर equal magnitude, तो मुझे तो फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा. What is the magnitude of electric field? सर ये तो है, हाँ सर, दोनों के लिए ये तो कांस्टेंट आएगा. कैपिटल Q, हाँ सर, यहाँ पे सोर्स है, तो सर यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 10. चलो, ये भी कॉमन आया. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अरे सर, हाँ सर, आपने बोला था इट इज मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है. अरे उसका मतलब सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P ड्यू टू 1
the direction opposite the electric field intensity on P due to 3. Can I say equivalent magnitude opposite in direction? तो resultant क्या हो जाएगा? Resultant electric field intensity at point P due to 1 and 3 क्या हो जाएगा? So 1 and 3 0 बन जाएगा. क्या इतना क्लियर हुआ सबसे पहले सबको? Yes, sir. I getting it? Resultant electric field intensity at point P इन दोनों की वजह से 0 हो गया. भाई बचा कौन सा चार्ज? बोलेगा सेकंड वाला बचा. तो मैं तो फोन दूंगा. ये भी पॉजिटिव है. Somebody's mic is on, my dear. इतना ऐसे साउंड इफेक्ट मत करो. वेदांत, वेदांत चिल्ला, you're breathing. वेदांत चिल्ला, knock knock. वेदांत चिल्ला, चलो इतनी जोर से ब्रीथ मत कर. हाँ, it seems that the viral infection is going on to a great extent. It is getting the. Okay, come back. Thank you, Vedant. Okay, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये देखो ये पॉइंट बी के ऊपर अभी क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है. कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? Who's applying force to consider? ये वाला. तो इसका क्या मतलब? ये होगा फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा स्टूडेंट्स, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इट. तो अभी जो पॉइंट पी पे लगे ना, वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ इसकी वजह से. इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज 2. फॉर्मूला क्या है? ये देखो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट. अभी के यहाँ पे नहीं दिया स्टूडेंट्स, और जब भी नहीं दिया होगा ना, के को बांध ले लो. अज्यूम करो कि ये वैक्यूम में है, तो ये क्या होगा सर? ये होगा 9 × 10⁹. क्यू क्या है सर? सोर्स कितना है? 2 माइक्रोकूलम. कहने से 2 × 10⁻⁶ अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर. r कितना है? ये है. स्क्वायर करो इसको, फिर ये होगा 25/2. तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये स्क्वायर होगा into 10⁻⁴. Can you solve this answer in Newton Coulomb inverse? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? So we can't use the formula F by Q. My dear, if you're trying to use F by Q and if I substitute F back over, I'm going to get this answer only. Why are you trying to eat food in this manner? Okay, yes, Correct. yes, sir. Doesn't matter, my dear. तो ये तुम्हारा क्लियर होगा. तो इसको तुम सॉल्व करोगे. तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा आ रहा था, शायद किसी ने 20 का नीचे आया था, लेकिन ऊपर कहाँ? देखो 9 4 36 आ रहा है. 36/25. और ये ऊपर चला जाएगा तो 9 ये हो जाएगा -2, तो 7 आ जाएगा मेरा ऑर्डर. अभी देखो, अगर किसी ने पूछा डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या बोलोगे? सर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to P, इन द डायरेक्शन ऑफ 2P. अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो क्या करोगे सर? ये 45 होगा. व्हाट इज cos 45? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. डायरेक्शन कोसाइन भी कंसीडर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यही क्वेश्चन में अगर मिटा दो और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं फोर्स डाल दूं स्टूडेंट्स, फोर्स डाल दो, तो भी क्या होगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा. इसके हिसाब से फोर्स अगर चेंज क्या होगा, इसमें क्या तुम निकालोगे? सर फोर्स में हमें ये क्यू दिया होगा, यानी यहाँ पे मैं एक चार्ज दूंगा, उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन का न्यूमरेटर. क्या ये क्लियर हुआ सर? हाँ. हेलो सर. यस बोलो. आपने वो डायरेक्शन का क्या बोला? Direction of the resultant electric field intensity is along 2 to P, is in the direction of 2 to P. और अगर मैं इसको 45 लेता हूँ तो cos of 45 will be adjacent upon hypotenuse. That's what I consider. Its direction cosine we consider. Okay sir, understood. Thank you Right. sir. क्या मैं इतना इरेज कर सकता हूँ? ये पूरा Yes, इरेज sir. कर स्टूडेंट्स? हाँ सर. ओके. तो हम लोग ने ये सब किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके ऊपर मैं और कुछ क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ. I'm giving you some more question onto this, okay? Problems, okay? Then let me complete the flow part of it.
Yes, students. So I told you about different superposition we consider. Okay. Then I told you about concept of electric flux. Electric flux, students, is simply it's E dot A. Number of electric field lines passing normally through a given surface space. और इसका यूनिट मैंने क्या बोला था, ये दो तरह के न्यूटन, अगर मैंने न्यूटन पर कॉलम ले लिया तो इसका यूनिट होगा न्यूटन कॉलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अगर मैंने वोल्ट पर मीटर ले लिया, इसका यूनिट दूसरा भी हो सकता है, वोल्ट मीटर we consider is voltmeter, because this is volt per meter we consider and this is meter square, so voltmeter I can consider. Okay, इनका कंपोनेंट अगर मैं लेता हूँ तो इट बी व्हाट, इट बी E cos theta into A या EA cos theta, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, E cos theta in the direction of A और EA cos theta. Agreed, I can consider this case. यहाँ पे अगर मैं E को सब्जेक्ट बना दूं तो इट कैन बी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी ये जो E का नाम है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसका नाम हो जाएगा, यूनिट वही होगा न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी ये क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दिस इज व्हाट आई कंसीडर, and it's a dot product, it's a scalar production, so do keep in mind when you're speaking about electric flux we consider. Okay, then after doing the concept of electric flux, I made it very clear between electric dipole का concept I made it very clear. That means I made it very clear, two charges, answer suna, two charges equal in magnitude, opposite in nature, दोनों का magnitude same है, opposite in nature, and they are at a certain finite distance we consider, results in formation of an electric dipole. लेकिन ये कौन सा है, ये polar molecules का, polar molecules, for example molecule of water मैंने बताया था, लेकिन वो यानी polar molecules के अंदर क्या होगा मालूम है, very well separated, negative and positive very well separate होगा, लेकिन अगर मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के सेंटर्स में होगा, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कंसिडर, ओके, CO2 लीनियर वाले, तो यहाँ पे उनका सेंटर्स विल बी कॉन्करेंट इन दैट केस, तो वो नॉन पोलर होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम जब भी हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स आर मच मोर इजी in order to make easy, in order to align the electric field lines. अब ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है ये भी मैंने बताया था, मैंने क्लियरली बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इसको वापस मैं एक दफे लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, ये देखो, सपोज इफ आई गो फॉर टू इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, ओके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एग्रीड ना। सपोज ना, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, सपोज अगर मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स का एक शीट लिया, दैट मींस इट्स अ डाइलेक्ट्रिक, इट्स एन इंसुलेटर, पूरा मॉलिक्यूल इट्स एन इंसुलेटर, एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका अगर मैंने कोई शीट लिया और उसको मैंने अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया ये दो प्लेट्स के बीच में, तो ध्यान से देखना, ये जो प्लेट्स है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स, इसको मैं लिखूंगा E0, the field due to the plates outside, E outside, so E0 लिख। अभी सपोज मैंने अंदर एक शीट ऑफ माइका लिया, एग्रीड, तो अगर उसके डाइपोल्स होंगे which are randomly placed, dipoles are always randomly placed, negative positive, positive negative, negative positive, randomly placed, जैसे मैंने इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में डाल दिया तो होगा क्या, सारे डाइपोल्स अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगे, they'll start turning and they'll start aligning in a proper pattern। यानी हुआ क्या स्टूडेंट्स, तो बोलेगा सर उसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डाइपोल का आ गया, ये नेगेटिविटी था तो यहाँ पे डाइपोल का पॉजिटिव, वैसे डाइपोल्स अपने आप को अलाइन कर देंगे। तो उससे हुआ क्या, सो उससे ये हुआ कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है डाइपोल की वजह से। कैन यू सी द डायग्राम? बोलेगा हाँ सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और जिसको मैं लिखूंगा EI, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से है सर, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से है, इंसुलेटर की वजह से है, माइका की वजह से है, क्योंकि जैसे आपने शीट को अंदर डाल दिया बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे अपने अपने डाइपोल्स है अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिए, फ्लिप होके अपने आप को अलाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर किसी ने पूछा सर
इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? तो सिंपल, वेक्टर्स वापस, ये बाहर का फील्ड, ये अंदर का फील्ड, रिजल्टेंट क्या होगा? सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू E0 माइनस E1। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यानी इज देयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस? यस, नॉट इनसाइड एन इंसुलेटर। लेकिन अभी मैं शीट ऑफ माइका को निकाल देता हूं। सोचो कि मैंने अभी कॉपर का एक प्लेट डाल दिया, कॉपर का प्लेट डाल दिया स्टूडेंट्स। अगर मैं इस कॉपर प्लेट डाल देता हूं, अगर मैं कॉपर प्लेट डाल दिया, तो कॉपर है क्या सर? कॉपर इज अ प्योर मेटालिक कंडक्टर, उसके तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ये बाहर की फील्ड है, देखो ये जो ये है वो बाहर की फील्ड है, E0, E0 बाहर की फील्ड है। उसकी वजह से होगा क्या सर? ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर के अंदर देयर आर नो पोलर मॉलिक्यूल्स। तो कॉपर मेटल होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कंसेप्ट आएगा। सो द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ रिपल्शन ये देगा और ये अटैक करेगा, सो दैट्स हाउ दे मूव इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज गोस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। Such a motion of electrons results in formation of what? Electric current. So is there any electric field intensity inside a metallic conductor? No. Therefore, we say electric field intensity inside a metallic conductor is 0. Agree, students? Yes, sir. All of you all. ये तुम्हारा कंसेप्ट है। I get it. फिर मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट can I erase this part? Can I erase this part? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now when I speak about electric dipole, I give you the formula for electric dipole. Okay. And the formula for electric dipole moment, I made it very clear. It's P into P into 12 electric dipole moment. We consider P, okay, is equal to product of any one charge into distance between the two charges. We consider it's a vector and the direction is always negative from negative to positive. ये तुम्हारा 12 यानी sorry, this is negative and this is negative. So students, do keep in mind, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या? टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ डायपोल। अगर सेंटर्स सेपरेट है एट अ सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस, ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस भी क्या होगा? डिस्टेंस भी क्या होगा सर? डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा, नैनोमीटर में। I getting it? Very small distance होगा। Of course, it's a separation between the centers of the two charges we consider. तो बहुत छोटा होगा। Results in formation of a dipole. Those are polar molecules we consider. ये क्या है? डाइपोल मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट इसकी वजह से होगा। तो टर्निंग मोमेंट अगर मुझे चाहिए लिख रहा है तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी एक चार्ज, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर कोई पूछेगा ये क्या है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ होगा सर? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एग्रीड? इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब मीटर। Then I give you about formula of torque acting on an electric dipole. That is P cross P. I made it very clear. That is electric dipole moment into electric field we consider. Since it's a cross product, these students, flux is a dot product. Flux is a dot product, E dot A. Agreed? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका कंपोनेंट होगा P E sin theta. Theta क्या है? It's the angle between electric dipole moment and electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान में रखना। एग्रीड? व्हाट इज द यूनिट वी कंसीडर इज न्यूटन मीटर। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Yes, Chirag has put this answer. Okay. Now further we consider is now I'll give you certain questions because I'll be going for work done. Okay. Now suppose if I happen to make you to give a question, just get the answer for this. Suppose if I give you an equilateral triangle, all sides. This is the first question, please. Okay. First put down all the questions accordingly, and then you can get the answer. Okay. Okay. It's an equilateral triangle, and there are three charges placed at three corners of an equilateral triangle. All are of same magnitude. Okay.
The side of the equilateral triangle I'll consider as A. I want to find out resultant. Electric field intensity at centroid of triangle. Which triangle? Equilateral triangle. That's my first question. Okay. Second question. Listen carefully, students. Okay. Absolutely correct page. शायद मैंने पूछा होगा पहले. पेज पूछा था मैंने ये पहले. तो मैंने ग्रेविटेशन किया होगा तो उसी के हिसाब से आंसर दिया रहेगा. Okay. Second question, students. Okay. 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 Fine. Second question, students. ध्यान से सुनना. Suppose अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +10 coulomb. Okay. A charge of +10 coulomb I'm having it, and another charge of +5 coulomb I'm considering. Okay, the two charges are placed, okay, at a distance 1 meter apart from each other. 1 centimeter apart from each other. Okay, two charges are placed. I want to find out a point. Find a point where resultant, am I getting it? Electric field intensity due to Q1 and Q2. Find a point where the resultant electric field intensity due to Q1 and Q2 is 0. Q1 and Q2 is 0. And that point I wanted from +5 coulomb charge. That point I wanted from +5 coulomb charge. Is this question clear? Yes, sir. Again, I repeat. Question क्या है? दो चार्ज दिए, एक 10 coulomb और एक +5 coulomb मैंने दिया है. Both of them are 1 centimeter apart from each other. मुझे एक point चाहिए between the line joining the centers of the two charges. जहाँ पे resultant electric field intensity 0 होना चाहिए to both the charges. लेकिन that point I wanted from 5 coulomb charge. Solve these two questions. Then I'll move further ahead.
Yes, anybody else? Just one answer and getting it down. What the others? Yes, all right. Who just given his answer, even Rohan, but both are different. Now, please pay attention, students, listen carefully. Many of them are trying, but I don't know why is it they're not able to. Let us go for the first one, students. Resultant electric field theory at the centroid. Here, centroid, a median divides the base of an equilateral triangle into two equal halves, and it divides the ratio also 2:1. ये भी median होगा, ये भी median होगा. अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि यहाँ पे एक ग्रेट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब भी मैंने क्या बोला था, सेंट्रॉइड पे अज्यूम करो कि एक पॉजिटिव चार्ज है. फ्रेंड्स, एक सीधा कंसेप्ट है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा. तो ये हुआ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से, यहाँ पे चार्ज पे. दूसरे वाले की वजह से कैसे होगा सर, उसका फोर्स इस तरफ जाएगा. एग्रीड. अब मुझे बताओ, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफरेंट होगा? नहीं सर, दोनों का सेम होगा, क्योंकि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. देखो 2:1, ये भी 2:1 होगा. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है. यस. इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? व्हाट इज दिस एंगल आई एम गेटिंग इट? तो तुम क्या बोलोगे? सर ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. तो अभी बताओ, इन दोनों का रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो अगर मैं लिखूं E1, ध्यान से रखना, E1 is equal to E2, तो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा सर? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो कहना पर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2. Cos of 120. What is cos of 120 students? What is cos of 120? Minus half. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हाँ ये सर. हुआ. तो अभी देखो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, माइनस आ गया. अब मुझे बताओ 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर क्या होगा? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? E1 ही आया. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा सर? इस तरफ होगा. और E1 का फॉर्मूला क्या है? E1 का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन ये R स्क्वायर, यानी ये R है. अभी देखो, थर्ड वाले का भी तो चार्ज जा रहा है, थर्ड वाले का भी जो चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है. तो ये रेडिंग क्या करेगा? ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा?
यानी फील्ड भी उस तरफ जाएगी. What is electric field intensity by 3 on this? So resultant electric field intensity by 3 on this, which is E3, and students E1 and E3 will have same magnitude. क्यों? क्योंकि सर इसका भी चार्ज सेम है, इसका भी चार्ज सेम है, इसके और इसके बीच में भी डिस्टेंस सेम था, E1 का भी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम, तो दोनों सेम है. लेकिन इज द ब्लू इंक एंड रेड इंक आर दे इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन होगा. थीटा कितना होगा? 180 डिग्री. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 0. क्या पहला वाला क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Please, those students who are doing gravitation is going on or it's done? You must have come across this kind of question. Resultant gravitational force. Yes. अब देखो यहाँ पे मैंने पूछा find a point with the result electric field intensity due to Q1 equal to 0. अभी मेरे को देखो डिस्टेंस मैंने +5 माइक्रोकूलम के हिसाब से पूछा. तुम क्या करो, यहाँ पे पॉइंट भी पकड़ लो ना. मैंने पूछा यहाँ से ना, तो तुम कैसे करोगे? अभी ये पॉइंट किस तरफ होगा? तो तुम बोलोगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, ये 10 कूलम है, तो सर इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका फील्ड कंपैरेटिवली वीक होगा. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आएगा न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे रिजल्टेंट 0 होगा. क्यों? क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव. ध्यान से देखना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे. समझ में आ रहा है? ये है कंसेप्ट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसके ये छोटे वाले होंगे, है ना, क्योंकि ये +5 कूलम का है. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिपल्शन होगा, यानी ये पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो अगर ये इसका फील्ड इस डायरेक्शन में दे रहा है, ध्यान से देखना, तो ये फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा. The field due to 10 coulomb will act in this direction. Field due to this will be acting in this direction. I get it? But this, the difference will be such that the result will be 0. अभी मुझे पूछा गया at what distance? तो let the distance I'll consider will be x from 5. तो इसको मैं x लेता हूँ, ये पूरा 1 है, तो ये कितना होगा? 1 minus x. Is this clear, students? Are the two electric field intensity equal in magnitude? Yes. Are they in opposite direction? Yes. इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? ई का फॉर्मूला क्या हुआ? ध्यान से देखना, सी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? एफ बाई क्यू. इफेक्ट चला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ज दिया ही नहीं था. तो ये तुम्हारा होगा, सी का मतलब क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. वही इक्वेट करो किससे? राइट हैंड साइड से. यहाँ पे भी सी कॉलम कांस्टेंट आएगा. यहाँ पे कितना सर? 5 कॉलम्स है. इसका डिस्टेंस क्या होगा? x स्क्वायर होगा. कैन यू सॉल्व एंड गेट द आंसर? यस. ये क्या होगा? 5 2 जा. So now can I say, solving it further, 1 minus x upon x the whole square will be equal to 2 by 1. Removing the root, this will be root 2 आ जाएगा. So 1 minus x is equal to what? Root 2 x we consider. तो ये क्या होगा? 1 is equal to root 2 plus 1 x हो जाएगा. तो x क्या होगा? 1 upon 2.4 हो जाएगा. Solve this and get the answer. 10 upon 24, 2 5s and 2 12s. 12 4s are 48, around 0.4 के आसपास आएगा. And somebody had posted the answer was 0.4. ये मैं MCQ के हिसाब से देख रहा हूँ. 0.41. Page has got the answer. Okay. Page is correct. And Rohil had got it earlier. Students समझ में आया? Students कैसे करना है? Students ये समझ में आया तुम लोग को? 1 minus x the whole square upon x करोगा 2 by 1. Taking square root लूंगा तो root 2 by 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 minus x is equal to root 2x. x को यहाँ पे लूंगा तो प्लस हो जाएगा. x को कॉमन निकालूंगा तो root 2 1.4 plus 1 यानी 2.4. 1 upon 2.4. 1 upon 2.4 यानी 10 upon 2.4. यानी 5 by 12. Approximation 0.4. 12 4s are 48. क्या मेरेज करो? हाँ Yes, सर. sir.
Okay, now one more question. Okay, two more questions and then we'll move further. Okay, let's see who can solve this. Are you barobar solve karna, students, please? Okay. A small particle carrying a negative charge. Small particle having negative charge. Okay, having negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So magnitude ये है, nature ये है. Is suspended in equilibrium. Is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 centimeter apart. Between two horizontal metal plates 10 centimeter apart and having a potential difference across them. Having a potential difference across them of 4,000 volt. Find mass of particle. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Is this question clear with everyone? Yes, sir. वापस में बोल रहा क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन. द क्वेश्चन आई एम स्पीकिंग इट वंस अगेन. और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बाद में स्टार्ट करना है. ओके, ऐसे सुनना. स्मॉल पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 into 10 to minus 19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर प्लेट के बीच में, and the potential difference across the two plates is 4,000 volt. Find the mass of a particle. दूसरा क्वेश्चन ये है, four electrically charged particles are placed at four corners. Okay, are placed at four corners. 1 microcoulomb, 1 microcoulomb, 1 microcoulomb, and 1 microcoulomb. Are placed at four corners of a square of side 1 centimeter. I want you to find out the resultant. Find out the resultant force at point B. Resultant force at point D. Clear हुआ students? Four charges of plus 1 microcoulomb, plus 1 microcoulomb, plus 1 microcoulomb are placed at four corners of a square of side 1 centimeter. Find out the resultant force, that is resultant electrostatic force. Okay, at point D. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो. Then we move further.
Yes, Rohan. Millikan oil drop experiment. बरोबर है. Charges spread. तो किया होगा, ज्ञानेंद्र सर ने किया होगा, 100% केमिस्ट्री किए होंगे. वही कंसेप्ट उठाना है. वहाँ पे to find out the E by M ratio remains constant magnitude of charge. Is anybody? Both are good questions. You said it. Sanya she's put forward. Sanya, is this the answer for the first one? Yes, sir. That you are correct. Absolutely correct. Yeah, बात है Sanya. But anybody else? Anybody else? Sanya, get the second answer also. Second question also. Yes, sir. And Sanya, you got the question onto gamma for mixture. Sorry, sir. You got the question for gamma for mixture. It came in the exam, no? Yes, sir. You got it correct. Sir, no, I got it wrong. So actually, there was some mistake in the answer key. So I told Shom, sir. So he told my answer was right, but Yes, they because didn't. I had a word with female students, the answer wasn't matching a word. It was like that. Yes, sir. So you are correct in that. Maybe you must have done a correct. If you use a correct mathematical relation, you get it correct. Yes, sir. I had used that only formula, which you told. N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 CP1 plus N2. Yes, sir. So I was getting 17 upon 11. So that is 1.5454. So I marked 1.5. And we did this. I don't know about it, whether I did it with you all. I've done, if you have done Beat and Karma, I've done question on that also. Yes, sir. You had done it. Similar questions. Yes, anyone, second one. Shall I solve both? Girls, what about the first one? Why aren't you getting the first one? Chirag,
Aren't you getting it? Diti, what happened to you? Muzaffar, Manchu, Yash, Kunjmudi. They did used to answer earlier. Rohil, Salman, Tej, Kapoor. Kunj has given the answer. Kunj पहले वाले का शायद order तेरा बराबर नहीं है. And Tej, your answer is incorrect, my dear. Okay, now I'll solve it. I'll solve it for both. I'll solve for both students. I know why you're not able to get it. What's the reason for not getting it? Okay, please pay attention. This was a question: small particle of negative charge Q 1.68 10 minus 19 Coulomb students suspended in equilibrium between two horizontal. Now, what's the diagram for this? You think in this manner you have two horizontally electrically charged plates. You think as if this is we consider as your positive charge we consider. Okay, this is positively charged plate and this is negatively charged plate. Direction of electric field किस तरफ होगा? Direction of electric field is always from positive to negative. ये है direction of electric field. Okay. Now उन्होंने क्या बोला है? Distance between the two plates दिया है 10 centimeter. So 10 into 10 raised to minus 2 वो हो जाएगा मीटर. 10 raised to minus 1 meter हो जाएगा. What's the potential difference between the two plates P1 and P2? The potential difference is given as how much? 4000 volts दिया हुआ है. A charge of minus 1.6 into 10 minus 19 is placed in equilibrium. यानी ये सोचो कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और वो इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? So the net downward forces is balanced by the net upward force. That means summation of all the forces acting on the negative charge is equal to 0. अभी नीचे कौन सा फोर्स है? सर नीचे तो उसका वेट होगा. ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा? सर इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है. ये बताया था कि नहीं बताया था? Negative charge will always go in the direction opposite to electric field. Electric field का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव में देखो यहाँ तक. तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएगा. तो ये कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन. दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो एक तरफ मैं mg लिखूंगा. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है E is equal to F by Q. तो F क्या होगा? E into Q. F की जगह पे कहना है ना E into Q. Agree students? मुझे क्या पूछा है? M पूछा है. तो what is M? सर E into Q upon G. What is E? Electric field intensity. So वो तो नहीं दिया है. हाँ लेकिन सर potential difference दिया, distance दिया है. So we know that E is equal to what? Potential difference upon distance between the two plates, volt per meter. Volt per meter. तो E की जगह पे कहना है ना potential difference upon distance into Q upon G. Now can you solve and get the answer students? अरे तुम solve कर सकते हो. Mass पूछा गया है. What is the potential difference? The potential difference 4000 दिया है. Agreed. What is the charge? Sir, 1.6 into 10 raised to minus 19. What's the distance between them? 10 raised to minus 1. What is G? I can take it as G as 10. Take G approximation as 10 and solve it. At 20 kilogram. We get the answer as 6.53 into 10 raised to minus 16 kilogram. क्या ये क्लियर है सबको? 6.53 into 10 to the power of minus 16 kilogram. Please, all the students who are within the meeting, I'm not bothered about students who are not there. Okay. I'm not bothered about students who wants to leave it and who wants to do studies to their comforts. Because they have a choice of, that's what I don't prefer recorded lectures. Because of the recorded lecture, students get the comfort of doing it to their, but actually it's a waste of more of time. Good students and sincere students, please try to avoid recorded lectures to a great extent. Try to be present in the lectures.
हाँ, कहाँ पे तुम्हें कंसेप्चुअल अगर वापस रिकैप करना है उसके लिए तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो सेक्शन पे आ जाओ फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड के हिसाब से, और उस सेक्शन को पकड़ो करके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than not attending the lectures and sitting back at home and then watching the recorded lectures. Okay, ये वाला कौन सा था क्वेश्चन? अभी देखो ये वाला, ये देखो तुम्हें चाहिए एट पॉइंट डी की तरफ से, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी और ये डी है। अगर मुझे डी पे चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, तो तुम क्या बोलोगे? रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट डी के हिसाब से क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है सर, ये चार्ज इसको रिपेल कराएगा, यस, तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन डी, तो मैं ए लिखता हूँ सर, एग्रीड। ये है सी, वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, हाँ सर ये होगा, सर ये होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय डी ऑन सी, सॉरी फोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन डी। व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन देम? 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। कैन आई गेट द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू फोर्सेस? इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हाँ सर मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट डी ड्यू टू ए एंड बी, आंसर देखना, ड्यू टू ए एंड सी क्या होगा? √2 टाइम्स एफ, है ना, 90 डिग्री है ना। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ सर। सेम है, तो ये तुम्हारा √2 एफ हो गया, और वो √2 एफ का डायरेक्शन इस तरफ गया, इस तरफ आ गया। अभी देखो ये वाला, एग्रीड। अभी B इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एट पॉइंट D, हाँ सर, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये इसको रिपेल करेगा तो इसी तरफ जाएगा, गेटिंग इट, एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन D। नाउ देखो ये फोर्स और ये फोर्स क्या दोनों एक डायरेक्शन में है? एग्रीड, आर इन द सेम डायरेक्शन स्टूडेंट्स? व्हाट इज थीटा? 0, cos ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1। Zero. रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? So resultant force will be √2f plus force exerted by B on D। आ गया, एडिशन होगा। अभी देखो ये √2, व्हाट इज f? f इन दोनों के बीच में, व्हाट एग्जैक्टली सर? c into q1 q2, एग्रीड, यानी 1 माइक्रोकूलम, इसका भी 1 माइक्रोकूलम अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच? 10⁻² मीटर, तो 10⁻² तो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय B on D, एग्रीड। तो ये क्या होगा सर? C तो आएगा ही, कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2, तो ये भी होगा 10⁻6, 10⁻6 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा सर? साइड इज 1, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल इज साइड √2, तो 1√2, तो ये होगा √2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर। स्क्वायर करो यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁴, इन दोनों को ऐड करो, दैट इज द फोर्स। फ्रेंड्स क्लियर हुआ? Is this clear with everyone? Vectors ही Yes, मैंने sir. किया है। अब यहाँ पे Yes, देखो, sir. यहाँ पे देखो, अगर मैं C देखो, अब मैं कांस्टेंट क्या निकालूं, मैं कॉमन क्या निकालूं? सर C का मतलब 9 × 10⁻9 बाहर आ जाएगा, 10⁻6, 10⁻6, 10⁻12 सर वो भी बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10⁻4, 10⁻4 वो भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या ब्रैकेट में सर? इसका तो √2 बचा, इसका क्या बचा? 1/2 बचा। 1/2 का मतलब कितना है? 0.5। √2 का मतलब क्या? 1.414, ऐड करो 1.914, तो कहने से इसको मल्टीप्लाई करो 1.914, agreed, agreed students, can you Yes. solve? See, you have to try to solve and make your calculations more easier rather than taking too many, तुम स्टूडेंट्स को इसका फोर्स निकालोगे, इसका फोर्स निकालोगे, फिर उसका नहीं ना, उसको वेरिएबल्स में रहने दो ना। और तुमने वेक्टर्स पढ़ा है, दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये √2f आ जाएगा, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और वो दोनों का एडिशन होगा, t cos ऑफ 0 तो 1 हो जाता है। हाँ वो बात है कि जब ये फोर्स इसके ऊपर आएगा तो उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो डायगोनल हो जाएगा। ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है, ये जो फोर्स है वो होगा साइड ऑफ द स्क्वायर होगा, ये ध्यान में रखना जरूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों नहीं, सबका चार्ज सेम था। हाँ, अगर मेरा कॉम्प्लिकेशन कभी बढ़ता है, जब इसको मैं 1 माइक्रोकूलम दूं, इसको मैं लूं 1 कूलम, इसको लूं 3 कूलम, और इसको लूं मैंने 10 कूलम, और दूसरा 2 को पॉजिटिव लूं, 1 को नेगेटिव लूं,
नेगेटिव होता तो इस तरफ आता, नेगेटिव होता तो इस तरफ आता, ये इस तरफ जाता तो रिजल्टेंट इस तरफ आता, और फिर ये वाला आता, इन दोनों के बीच में एंगल निकालते। क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Shall I erase now? Yes, sir. Okay, students. Now we go for the formula for work done. Okay. So I'll put forward the formula. Torque I've given you is P bar cross P bar, and torque is given as P E sine theta. This is speak about for a dipole. Okay. Now we are finding out expression for work done. Okay. That is stored electrostatic potential energy. Okay. In an electric dipole when placed or when rotated in an external electric field. Friends, we are trying to find out the formula for work done, okay, which is U electrostatic potential. इसका formula हम यहाँ पे derive करके लिखेंगे. Agreed? Let us go for this now. The unit of torque is Newton meter. The unit of work will be Joule. Please pay attention for this. Let us understand this. To get this concept, let us say that मैंने क्या किया, मतलब मैंने दो electrically charged plates लिए students, ये positive और ये negative. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इन दोनों के बीच में, and these are the electric field lines. They move from positive to negative. These field lines are all parallel and close with a uniform and strong field. Okay, so this is the direction of electric field and concept. Now what I'll do, students, I'm taking a charge. I'm taking a dipole. Okay, dipole का मतलब two charges equal in magnitude, opposite in nature, placed within the electric field. अभी for example, suppose मैंने dipole को align किया है और dipole को मैंने I've placed in this manner. Think as if this is my positive end and this is the negative end of the dipole. The distance between the dipole, whenever I speak about distance between the two dipoles, the distance between the two dipoles is always 2L, and it's a vector. Agreed? Electric dipole moment is given by the formula P is equal to Q into 2L, and it's always directed from negative to positive. Unit is coulomb meter. यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. अभी देखो डाइपोल को सपोज मैंने ऐसे अलाइन किया है एट एन एंगल थीटा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? विल इट अंडरगो टर्निंग इफेक्ट? तुम बोलोगे हाँ सर, क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज हमेशा विल गो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो होगा क्या? एक टर्निंग इफेक्ट होगा. There will be a turning effect taking place in this case. So the entire system is now undergoing a turning. Turn कब तक टर्न होगा? कब तक टर्न होगा? जब तक वो अपने आप को अलाइन नहीं कर देगा इन दिस मैनर. अब देखो, सपोज अगर मैंने डायपोल को, ये मेरा पहला पोजीशन है और ये मेरा आखिरी पोजीशन है. दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन. दिस अगेन. अभी देखो, अगर मैंने डायपोल को ऐसे रख दिया तो अभी क्या डायपोल मूव होगा सेकंड पोजीशन में? No, sir. तो ये इक्विलिब्रियम हुआ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट इज मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम. डायपोल मूव नहीं होगा. लेकिन अगर सपोज मैंने डायपोल को, ध्यान से देखना, अगर मैं डायपोल को 1 भूल जाऊं 2 भी भूल जाऊं, अभी पोजीशन 1 भूल जाओ, पोजीशन 2 भूल जाओ,
पोजीशन 1 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसलिए वो टर्न होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पोजीशन 2 स्टेबल इक्विलिब्रियम. इफ आई आस्क यू व्हिच इज द मोस्ट अनस्टेबल पे क्या होगा? सर डायपोल को ऐसे रख दो ना, तो होगा क्या? सर ये पूरा डायपोल टर्निंग इफेक्ट होगा 180 डिग्री, पूरा 180 से टर्न हो गए, will align itself from 3 to 2. Can I say I can give you different positions of theta accordingly and tell you to find out the work done in this case? Yes. There is some amount of work done. क्योंकि डायपोल पहले ऐसा था, ध्यान से देखना, डायपोल ऐसा था, तो मैंने क्या किया, डायपोल को मूव किया, हाथों से मूव किया. Think as I'm doing it, I'm doing some work. मैंने मूव किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये स्टेबल कंडीशन है. मैंने मूव किया और मैंने ऐसे रखा. So did I do maximum amount of work done? Yes, I've done some work. क्योंकि जैसे मैं मूव कर रहा था ना, तो डायपोल को फोर्स लग रहा था, डायपोल अपने जगह पे आना चाहता था. देखिए मैंने उसको मूव किया. So am I doing some work? Yes. The work done by me gets stored in the dipole in the form of which energy? Electrostatic potential energy. अरे सर ये तो एग्जैक्टली ये वाला कंसेप्ट आ गया. सर ये तो ये वाला कंसेप्ट आ गया कि आपने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया है, ये नॉर्थ और ये साउथ लिया है, और आपने दूसरा कोई मैग्नेट लिया है जिसका ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये मैग्नेट को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, मूव करो तो उसको बहुत फोर्स लग रहा है. फिर आपने मैग्नेट को पूरा ऐसा रख दिया, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा, जैसे आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, रिपल होकर ऐसा जाएगा, यानी अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट गोज हैंड इन हैंड. That's why after electrostatics, when they complete, you need to go with respect to your current, and then you go for magnetism, magnetic effect. These are your physics 2 topics. So now let us find out the formula for work done. Yes. So we get the formula for work. Think as if कि हम लोग कर रहे हैं displacement. Let us say that this particular dipole को हम displace कर रहे हैं at a very small angle d theta. Suppose मैंने डायपोल ऐसे था, मैंने डायपोल को सिर्फ इतना ही डिस्प्लेस किया at a very small angle. What about the work done? So the work done in order to displace the dipole will be equal to what? Some work done will be equal to force into displacement d theta itself only, because the displacement is very small. लेकिन अगर suppose मैं बोलूं I want to rotate this particular dipole from initial to certain final position. Okay, so I have to go for the total amount of work done. To get the total work done क्या करोगे तुम? तो अगर आपको total work done चाहिए for complete deflection, then you have to go for integration of dw, which is 0 from w, और ये w आ गया, which is integration of torque into d theta. Initial position will be theta 1, final position is theta 2. ये initial position of dipole और ये final position. क्या ये clear हुआ? Agreed? अगर तुम लिखते हो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, वर्क इज व्हाट स्टूडेंट, वर्क का फॉर्मूला क्या है सर? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस. ये किसके लिए? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, लेकिन और इसका कंपोनेंट है कॉस थीटा भी कंसीडर. अगर मैंने पूछा रोटेशनल या सर्कुलर के अंदर क्या लोगे, तो ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा इनटू थीटा. ये भी डॉट प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है, कंसीडर. लेकिन ये तुम्हारा थीटा को तुम सॉल्व करोगे तो यू गेट द अदर वन वी कंसीडर. ये तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया. ये तुम्हारा रोटेशनल के हिसाब से आया और ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल के हिसाब से आया. Now can I solve further? What about the total work done? The total work done will be W. Integration of torque. What's the formula for torque? The torque का formula है P E sin theta into d theta. Initial position theta 1, final position theta 2. क्या ये clear हुआ सबको? Is this clear, students? Everybody, all of you all, those who are within the lectures. Yes, sir. हाँ Okay. Okay. Now listen carefully. अगर मैं बोलूँ what is P का मतलब क्या है? सब P का मतलब तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो सेम ही है, क्योंकि दोनों चार्ज भी सेम है. पूरे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के टाइम पे जब भी मैं मूव कर रहा हूँ थीटा 1 से थीटा 2, तो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो चेंज नहीं किया. दोनों डायपोल के बीच में डिस्टेंस भी सेम है, तो P तो कांस्टेंट है. दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेचर, ये चार्ज है यहाँ पे, उसको भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं. एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट टर्म्स कभी इंटीग्रेट नहीं होती है. तो व्हाट एग्जैक्टली फॉर्मूला फॉर वर्क डन? तो वर्क डन में आप P को बाहर निकाल दोगे, बचा क्या अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा. स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा?
minus cost. Agreed. Initial position theta 1, final position is theta 2. Can I remove this minus sign outside? Yes. ये आ जाएगा, ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ अच्छी तरह से तो क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव लगता पॉजिटिव होगा तो पी की जगह पर क्या होगा, cos of theta 1 minus cos of theta 2. Students, theta 1 is initial position. Theta 2 is final. Agreed. And this answer will be in Joule, and that becomes your formula of it. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Agreed. अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने डायपोल को मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाला, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डालता, उसका मतलब क्या डाल दिया है, रेडिंग वाला, यानी ये पॉजिटिव है तो डायपोल का एक पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यानी इनिशियल पोजीशन को लेट मी टेक दिस थीटा 0, जैसे वो रख दिया क्या होगा, पूरा फ्लिप होकर कहाँ की तरफ गया, फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगा, पाई रेडियन सॉरी। व्हाट एग्जैक्टली वर्क डन, वर्क ध्यान से सुना, वर्क डन, ध्यान से सुना, अगर ये किसी ने पूछा वर्क डन इन ऑर्डर टू रोटेट अ डाइपोल, आई गेटिंग इट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम मोस्ट अनस्टेबल टू स्टेबल, तो क्या होगा फॉर्मूला, सो cos ऑफ 0 कितना होगा, 1। एग्रीड, cos ऑफ 0 कितना होगा, 1। cos ऑफ 180 कितना होगा, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, 2pe। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अगर और ये और इसमें मैंने किया क्या, मतलब मैंने इनिशियल पोजीशन थीटा को 0 लिया है, फाइनल पोजीशन मैंने पाई लिया है। अगर सपोज स्टूडेंट्स को उल्टा लेते हैं, इनिशियल पोजीशन सपोज अगर वो अनस्टेबल को पाई ले रहा है, इनिशियल पोजीशन अनस्टेबल को पाई सर्कुलर ले रहा है, फाइनल स्टेबल को 0 ले रहा है, तो क्या होगा, व्हाट इज cos ऑफ 180, -1। ये कितना होगा, cos ऑफ 0 इज आल्सो व्हाट, -1, -1 कितना, तो वो -2p। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, which is the most appropriate way of presentation, +2p में -2p from unstable to stable? +2p। No my dear, -2p। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, दोनों पैरेलल है, थीटा 0, आई गेटिंग इट। ओके सर, यस सर। देखो ना स्टूडेंट, ये देखो ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, एवरीबॉडी पॉजिटिव नेगेटिव। अभी देखो अनस्टेबल में देखो, ये देखो रेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो ये मोस्ट अनस्टेबल हो गया। एग्रीड, अदर टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या है? ऑपोजिट। तो यहाँ पे थीटा क्या लोगे, 180 लोगे ना, 0 हाँ कहाँ सर। से लोगे? और फिर फाइनल पोजीशन क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन में 0 होगा। तो स्टूडेंट्स ये इनवैलिड है और ये वैलिड है, ये ध्यान रखना, हाउ टू सिलेक्ट एंगल्स, ये एमसीक्यूज में भी पूछता है, ऑप्शंस +2p -2p, वर्क डन इज 0, समझ में आ रहा है, और ये डायरेक्शन के हिसाब से है। Agreed students, all of you all? यस सर। And this answer will be in June. Since we are speaking about charges, the energy of a charged particle can also be considered in EV. And everybody knows that what is 1 EV, students? 1 electron volt कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 joule. This is charge on an electron. We consider charge particle. We consider. Getting it? ये है तेरा एटॉमिक चार्ज के हिसाब से, एटॉमिक एनर्जी के हिसाब से। अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी के हिसाब से जाऊंगा तो 1 MeV आ जाएगा। व्हाट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -19 + 6, 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। यानी स्टूडेंट्स ईवी किसके लिए होता है मालूम है, एटॉमिक एनर्जी के लिए। एमईवी किसके लिए होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस, extra nuclear particle. This is for nuclear particles. Electron is a subatomic. We consider this a subatomic particle. यस सर। क्या इरेज कर सकता हूँ मैं अभी इतना? हाँ सर। Yes, sir. Okay.
मस्ट बी और तो मस्ट बी आराम से है ना, खाना भी खाते होंगे ना म्यूट करके, है ना, टेबल वेबल ममा ने ला के दिया भी होगा, है ना, कोई तो आमरस पूरी भी खाता होगा। डोंट लाफ सानिया, डोंट लाफ, ओके। Sir, I was laughing. Because 22 is a normal. Okay, fine. This is what I told about electric dipole we consider. I told you about torque acting on electric dipole moment and work done. Okay. Chirag says no. Okay, Chirag, very good one. Now please pay attention. Now we are trying to go for your electric field intensity students. Okay, need to find our electric field intensity at a point along the axis. पहले हम क्या करेंगे, डाइपोल के हिसाब से जाते हैं. ओके, अगर मैं दो डाइपोल लेता हूँ तो हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल. Since the time is less in that case, so what I'll consider is I'll go for electric field intensity. दो डेरिवेशन उसमें है, एक मैं करूंगा, एक तुम अपने आप से करना. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट टाइम जब भी हम आगे जाएंगे तो सर तुम बोलना कि सर पोटेंशियल फॉर अ डाइपोल के हिसाब से आप बोल रहे थे, तो वो शुरू करना. ओके, तो अभी ये क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आंसर सुनना. फर्स्ट at a point along the axis of an electric dipole, और दूसरा at a point along the axis and along the equator of an electric dipole. अभी हम एक्सिस और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, तो हाउ टू गो अबाउट दिस. फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, सपोज अगर मैंने कोई डाइपोल दिया है तो मैं I'll go for this one I want to try it out by yourself. ओके, तो सपोज अगर मैं एक डाइपोल लेता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ, तो मुझे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है. ये डाइपोल हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है सर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 है. एग्री. इसका डायरेक्शन होगा, हाँ सर, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो a line passing, ध्यान से सुनना, a line passing to the center of the dipole, a line passing to the center of the dipole, students, is called as the axis of the dipole. ये है इलेक्ट्रिक एक्सिस. जैसे मैग्नेटिक एक्सिस होता है, अर्थ एक्सिस भी कंसिडर, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक एक्सिस है. इसी का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेटर. दिस इज इलेक्ट्रिक इक्वेटर और ये होगा इलेक्ट्रिक एक्सिस. ये क्लियर हुआ सबसे पहले. और ये मेरा डाइपोल है. मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू फाइंड आउट द resultant electric field intensity. Resultant electric field intensity at a point along the axis of an electric dipole. अभी तुम्हें सिलेक्ट करना है कहाँ पे लो पॉइंट. तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसलिए यहाँ पे लेते हैं, कोई बोलेगा यहाँ पे लेते हैं, कहाँ पे लो, आंसर सेम ही आएगा. I get that's what you have to consider. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टाइम पे हम नेचर नहीं लेते. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, हम नेचर नहीं लेंगे. Now to make it more easier, to have a direction, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ. सपोज अगर मैंने लिया कि मैंने चार्ज को यहाँ पे रखा at point P, students. Okay, let us say I want to find out electric field intensity at a point along the axis. तो ये मेरा point P यहाँ पे. तो point P का जो distance center of the dipole से कितना है, let me take this as R. ठीक, ये center of the dipole से. Agreed? तो वही पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से कितना दूरी होगा. तो बोला सर ये टोटल डिस्टेंस 12 है, तो ये L हुआ, ये L हुआ, तो सर Q से क्या डिस्टेंस होगा, तो सर ये तो R माइनस L हो जाएगा. एग्रीड. और माइनस से कितना होगा, सर माइनस से R प्लस L हो जाएगा. So is this point P at a distance R plus L from minus Q? Yes. Is this point P at a distance R minus L from plus Q? Yes. Is this point P from the dipole? From the dipole is small r, yes, and from the dipole का मतलब center of the dipole. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P. At a point P,
ड्यू टू द डाइपोल, तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सर अभी ये तो सिंपल हो गया, ये तो प्रॉब्लम आ गया। जो हम लोग आपने जो प्रॉब्लम हम लोग को सब पहले दिए थे उसी के टाइप का आ गया ये। यानी सर आप अभी क्या करोगे मालूम है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आप यहाँ पे एक अज्यूम करोगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इतना सा है, तो ये बन जाएगा मेरा इफेक्ट और ये बन जाएगा मेरा सोर्स। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा इफेक्ट, आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या करेगा, ये सोर्स इस इफेक्ट को रिपेल कराएगा, ठीक है से दिस इज फोर्स। अभी सपोज मैं इसको 1 लेता हूँ चार्ज को और इसको मैं लेता हूँ 2 टू मेक इट मोर इजियर। तो दिस इज फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1, उसका ही डायरेक्शन होगा। लाइकवाइज सेकंड वाले का भी होगा। सेकंड वाला कहाँ क्या है सर? सेकंड वाला इज माइनस क्यू भी कंसिडर, एग्रीड, और ये माइनस क्यू इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भी कंसिडर। तो उसके हिसाब से भी, हाँ सर उसके हिसाब से भी तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पॉजिटिव है तो इसके हिसाब से क्या होगा सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको तो अट्रैक्शन मिलेगा। यानी one will try to repel, two will try to attract this. Hello, not repel. Two will be negative और ये positive है. Two will try to attract it. तो force of attraction इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ। अभी देखो, अभी मैं पूछूं किसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, अगर मैं पूछूं रिपल्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा या अट्रैक्शन का ज्यादा होगा, तो मेरा सर सीधा हिसाब है, ये तो इसके नजदीक है ना, तो ये रिपेल कर रहा है और ये तो बहुत दूर है, r प्लस एल की दूरी पे, ये तो r माइनस एल की दूरी पे। पर आपने बोला था फोर्स एंड ई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो सर इसका इफेक्ट वीक होगा, इसका इफेक्ट स्ट्रांग होगा, इसका वीक होगा। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग वेक्टर में लिखते हैं, लेकिन इसको मैं छोटा एरो दिखा दूं। अभी क्लियर हुआ? लेंथ ऑफ द एरो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड। तो electric field intensity E1 due to plus Q, electric field intensity due to minus Q is E2. What is the angle formed between them? What is the angle formed between them? The angle formed between them is pi radians. Pi circle of 180 degrees. What's the resultant in vector form? The resultant in vector form will be equal to E1 plus E2. But since the angle between them is 180, using parallelogram law of vector addition, है ना, because it's vectors, तो उसके अंदर parallelogram vector addition में है क्या? Magnitude लेते हो ना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। तो वैसे यहाँ पे e का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो e का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos ऑफ पाई। तो कहने से मैं रिजल्टेंट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस। डिफरेंस में भी किसका आएगा, विल इट बी e2 माइनस e1 या e1 माइनस e2? सर e1 इज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड एज कंपेयर्ड टू e2, so one difference e1 माइनस e2। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी हमें रिजल्टेंट पूछा है, व्हाट इज माय क्वेश्चन इज रिजल्टेंट। अरे हाँ सर मिल गया, एट अ पॉइंट, हाँ सर यहाँ पे, कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस, हाँ सर यहाँ पे एक्सिस पे। अभी ई, अभी व्हाट कैन वी डू, यू हैव द फार्मूला ऑफ e1 and e2? हाँ सर ई का तो आपने फार्मूला बोल दिया था, ई का फार्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। इफेक्ट तो आता ही नहीं है, तो दोनों का, हाँ सर दोनों का फार्मूला डाल दो, ध्यान से देखना, ई इज इक्वल टू व्हाट, e1 की जगह पे क्या लिखूंगा सर, e1 ये मेरा सोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, सोर्स इज q अपॉन r स्क्वायर क्या होगा सर, ये होगा r माइनस एल द होल स्क्वायर, एग्रीड, माइनस e2 का फॉर्मूला क्या होगा सर, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन स्टूडेंट्स, नीचे क्या आएगा सर, ये होगा r प्लस एल द होल स्क्वायर। क्या ये हुआ, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला? क्लियर? e1 minus e2, students, Yes, all of sir. you कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो कांस्टेंट टर्म को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ जाएगा, क्यू आंसर इसको भी बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/r माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1/1/r प्लस एल द होल स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम में r माइनस एल द होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, r प्लस एल द होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करो, तो सर ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, या तो स्क्वायर करके करो। तो न्यूमरेटर का मेरा आंसर क्या होगा सर, ये तो q है,
ये आपका 4 pi epsilon naught k. Is that clear? Is that clear? So in that case, what exactly? यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें 2r मिलेगा और 12 भी मिलेगा न्यूमरेटर में, अपॉन ये क्या होगा, a minus b and a plus b. a minus b plus a plus b क्या होगा, a square minus b square raised to the power of 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मैथ्स, दिस इज मैथ्स नॉट फिजिक्स. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एवरीवन? Yes. अभी देखो q into 12. What is q into 12? What is q into 12 students? What is q into 12? p. Dipole. q into 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इसकी जगह पे कहना है p. हाँ सर 2 है, हाँ सर 2 भी है. r, हाँ सर r भी है. डिवाइड में क्या आ रहा है, 4 pi epsilon naught k r square. And that's your formula for resultant electric field intensity, Newton Coulomb inverse. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? यानी जब भी प्रॉब्लम्स देंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर इफ दे गिव यू दैट पॉइंट p as a distance of so and so from the dipole. Agreed? लेकिन एक लास्ट कंसेप्ट, 30 seconds more. Listen carefully students. सपोज अगर मैंने पॉइंट p को बहुत दूर ले लिया होता, बहुत दूर ले लिया होता, तो to an observer who is stationed at point P, how do the two dipoles will be? Will they be very separated or will they be very close to each other? Very close. Very close. अगर at present मैं खड़ा हूँ और मैं ये दो पॉइंट को देख रहा हूँ, ये दो पेंस को देख रहा हूँ, तो मुझे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर मैं ये दोनों को दूर कर दूं या मैं अपने आप को इनसे दूर कर दूं एट अ वेरी फार डिस्टेंस, तो ये दोनों मुझे क्या लगेंगे, ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम. यानी तुम्हारा भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए. क्योंकि जब भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे ना, 10 में से स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल पे आते हैं, 3 क्वेश्चन इस पे आते हैं. यानी यहाँ के जो क्वेश्चन है बहुत कम अटेम्प्ट होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए फॉर्मूला भूल जाते हैं स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला 200% श्योर आफ्टर 7 डेज सारे भूल जाएंगे. ये फॉर्मूला फिर भी याद रहेगा, ये भूल जाते हैं क्योंकि इसके ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होते हैं. तो देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब आपने ये बहुत छोटा ले लिया, उसका मतलब L is smaller than R, तो L square will be still smaller than R square. यानी वो इतना शॉर्ट हो जाएगा. तो कैन आई नेग्लेक्ट दिस पार्ट इन माय इक्वेशन? कैन आई नेग्लेक्ट दिस पार्ट L square का? Yes, sir. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, R⁴ आएगा, है ना? Yes, sir. क्या है, R है, वो कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट एग्जैक्टली माय फॉर्मूला? सो E along the axis for a short dipole 2p upon 4 pi epsilon naught k r3. And this is the formula for E along the axis for a short dipole. Is this clear, students? Yes, sir. Is this clear? This is for a Yes, short. sir. Okay. Next time we'll go further with equator part of it and we'll go for potential. Okay, students.